which we will discuss digestion, absorption, storage, toxicity, deficiency mechanism, role or function, therapeutic use, their sources, distribution. Which is known as a antioxidant or anti-sterility. Basically, group of fat-soluble compounds include tocopherol and tocotrienols. In tocopherol, most common active form is alpha tocopherol, which is consists of 6-hydroxychromium ring with isoprenoid side chain, और basically इसकी antioxidant properties chromium ring की वजह से है. Properties of vitamin E, basically इसमें light yellow oil, stable to heat and destroyed by cooking or food processing, including deep freezing. Sources its include both animal and plant sources. In animal sources, liver, meat, egg, fish, milk, and human milk is 2 to 4 times richer than cow milk. और इसमें अगर प्लांट सोर्सेज की बात करें उसमें वीट जर्म ऑयल है, ठीक है, और कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. Role or mechanism of vitamin E, it prevents formation of toxic peroxidative products such as LDL है. Basically ये prevent करेगा LDL की oxidizing formation को, जिसका link cardiovascular diseases के साथ है. Other function में basically maintaining the integrity और of the membrane of cell, like ये जितने भी cellular organelles हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी membrane की integrity को maintain करते हैं. like हमें पता है कि बीटा कैरोटीन है which act as a antioxidant at low oxygen partial pressure. लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर विटामिन ई की बात करें, ये एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट एट हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर. ठीक है, ये रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, रेटिना की, इनकी मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस में करता है. फिर ये रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, उनके हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर हीमोलाइसिस हो रहा है तो उसकी वजह से एनीमिया होगा. विटामिन ई along with selenium, A, beta carotene and C provides protection against diseases such as cancer, cardiovascular diseases. Main role vitamin E का protection from oxidation. ठीक है, basically ये prevent करेगा lipid पर oxidation को, और role इसका क्या है कि oxidation में इसने like इसका role है. Recommended dietary allowance for alpha tocopherol for male is 10 mg and for female is 8 mg. एंड इसकी डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट्स है. ये मोस्ट कॉमन आपको पता होना चाहिए कि एज ग्रुप किस में ज़्यादा कॉमन है. अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, ये लीस्ट टॉक्सिक फैट सोल्यूबल विटामिन है. ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है अगर हम इसका कंपैरिजन अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ करें. विटामिन ई, इट्स अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, only 40% of amount is absorbed. ठीक है, bias and fats increases its absorption. और GI mechanism, like GI tract में इसकी mechanism सेम जैसे अदर फैट सोल्यूबल का है, सेम इसकी भी absorption और स्टोरेज इसी वे में होती है. ठीक है, सबसे पहले एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में इन काइलोमाइक्रोन थ्रू लिम्फ. It is taken up in the chylomicron by the liver, and hepatic alpha tocopherol transport protein is incorporated into very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, and low density lipoprotein. And in liver, vitamin E is basically incorporated into lipoproteins and then transported to target tissues. इसका रोल बेसिकली ये प्रोटेक्ट करेगा हार्ट डिजीज से, प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल. ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एलडीएल कॉजेज हार्ट डिजीजेस, और बेसिकली ये अलोंग विद विटामिन सी, बीटा कैरोटीन्स, इट डिले द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट.
Basically, it prevents oxidation of vitamin E and beta carotenes and storage of keratin in muscle cell needed for optimal absorption by intestinal cell or protects liver from damage by free radicals और hepatic necrosis को prevent करता है. ठीक है, ये like न्यूनेटल मसल क्रैम्प्स है, ब्रेस्ट कैंसर्स है, इनमें प्रोटेक्ट करता है. इन केस डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी देन नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये मेन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगी और इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होंगे और हिमोलिटिक एनीमिया है. इन केस अगर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम विटामिन ई डेफिशिएंसी शोज मस्कुलर लीजन्स होंगी, डिक्रीज मसल क्रिएटिन होगी, ठीक है, उसकी वजह से क्रिएटिन यूरिया हो जाएगा और रेस्ट किसके लेवल हो जाएंगे, सीरम क्रिएटिन काइनेज के सीके के लेवल ज्यादा हो जाएंगे और इसको हम क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज भी कहते हैं. इसमें हम लोग अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कर रहे हैं विटामिन ई की, रिवर्स कर सकते हैं these changes. Therapeutic uses main role in neonatal respiratory distress syndrome. Vitamin E is act as a synergistically with selenium, which is a cofactor for antioxidant enzyme glutathione peroxidase enzyme का name है that destroys free radicals. फैक्टर अफेक्टिंग इट्स रिक्वायरमेंट, अब इसमें दोनों फैक्टर्स होंगे लाइक ऐसे न्यूट्रिएंट जिसकी वजह से इसकी इनटेक कम या इसका इनटेक ज्यादा होगा. इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीजेस इट्स रिक्वायरमेंट. सेम अगर सेलेनियम डाइट में ज्यादा इनटेक है उसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट और डिक्रीजेस रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई. Vitamin D, they are group of sterols that have हार्मोन-like एक्शन. बेसिकली इसको हम सन हार्मोन भी कहते हैं, स्टेरॉइड भी कहते हैं और इसका अदर नेम 125 डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है. It can be synthesized in the body and released in the circulation and action is similar to steroid hormone. Like हमने पहले कह दिया कि ये स्टेरॉल है जिसमें इसमें एल्गोकैल्सिफेरॉल एंड जिसको हम विटामिन D2 भी कहते हैं और फाउंड इन प्लांट्स एंड कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 और ये फाउंड किस में होता है, ये प्रेजेंट किस में, एनिमल टिश्यूज में, ठीक है. और मेनली लाइक जो इसमें अगर डिफरेंस दोनों में एल्गोकैल्सिफेरॉल एंड कोलिकैल्सिफेरॉल में बेसिकली इसकी केमिकली अगर प्रेजेंस ऑफ एडिशनल डबल बॉन्ड एंड methyl ग्रुप इन अ प्लांट स्टीरोल में, ये मेन डिफरेंस इन दोनों का है. इन केस के अगर किसी भी पर्सन का सनलाइट से एक्सपोजर कम है, ठीक है, उसकी वजह से अगर हम प्रो विटामिन D3 की कन्वर्ट होना जिसने D3 में थ्रू सनलाइट, ठीक है. अब अगर एक्सपोजर सनलाइट से कम है, ये कन्वर्जन नहीं होगी, इसकी इनएक्टिव फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा जिसकी वजह से डिजीजेस हो सकती हैं. अगर हम इसकी बात करें कि लाइक ऑस्ट्रोमलेशिया, इसमें मेनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्ट्रोमलेशिया हो रहा है और ये मोस्टली ऐसे पर्सन्स का जिनका एक्सपोजर सनलाइट से नहीं है उनमें मोस्ट कॉमन है. एंडोजनस विटामिन प्रिकर्सर, ठीक है, इसके टू लाइक मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि एक डाइट है, ठीक है. अदर सोर्सेज में इसमें एंडोजनस विटामिन प्रिकर्सर है. जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हो रहा है वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, उसका नेम है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है. ये प्रेजेंट होगा अंडर द डर्मिस और एपिडर्मिस ऑफ स्किन. जैसे when skin is exposed to sunlight होगी, ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा कोलिकैल्सिफेरॉल in the dermis and epidermis. Other sources of vitamin D3 includes fish liver oil, egg yolk. These are the good sources. And vitamin D3 content of milk and egg depends on the diet of cows and their exposure to sunlight. And human milk is not a good source if we compare with cow milk.
Recommended dietary allowance for alpha tocopherol for male is 10 mg and for female is 8 mg, एंड इसकी डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट्स है। ये मोस्ट कॉमन आपको पता होना चाहिए कि एज ग्रुप किस में ज्यादा कॉमन है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, ये लीस्ट टॉक्सिक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। अगर Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss B5 and B3, in which we will discuss their properties or sources, deficiencies, toxicity, main role like niacin का as a nicotine amide, बेसिकली स्ट्रक्चर है टू कोएंजाइम जिसमें NAD एंड NADP, और बेसिकली ये रोल एज ए कोएंजाइम है इन ऑक्सीडेशन में, और बेसिकली ये इन DNA रिपेयरिंग में एंड कैल्शियम मोबिलाइजेशन में। नाइसिन प्रोड्यूस टू बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स हैं ऑफ कोएंजाइम, लाइक नाइसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं कोएंजाइम की टू बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स में, जिसमें निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, लाइक इसमें NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP, nicotine amide, adenine dinucleotide phosphate. NAD or NADP basically help in redox reactions, reduce form है इसमें NADH2, NADPH2, और बेसिकली ये NAD और NADH2 एक्ट करें एज ए कोएंजाइम in synthesis of ATP through oxidative phosphorylation, और बेसिकली NADPH इसमें कोएंजाइम और कैरी करता है हाइड्रोजन आयन, और बेसिकली ये प्रिवेंट करता है RBC को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। Deficiency of niacin causes disease or that called plagra, or effects of deficiency in case of niacin plagra होगा, और इसमें बेसिकली इसके बेसिक फीचर्स में 3D dermatitis, dementia and diarrhea. The disease is mostly found in female or women of childbearing age and in growing children. Like basic target population इसमें क्या है कि women of childbearing age and in growing children. One of the main reason niacin की deficiency और इन प्लेग्रा में बेसिकली हाई इंटेक है ग्रेन्स का एंड लो इंटेक है प्रोटीन का। बेसिकली हाई इंटेक ग्रेन्स का और लो इंटेक प्रोटीन का मेन कॉजिंग फैक्टर है। स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेसिकली मेन इफेक्ट हो रहे हैं इन प्लेग्रा में, और 3D डर्माटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया, और वो बेसिकली इन स्किन में डर्माटाइटिस है, डाइजेस्टिव सिस्टम डायरिया, और डिमेंशिया नर्वस सिस्टम। मेन डर्माटाइटिस, देन पिगमेंटेशन है, स्किन लीजन्स होगी, और इसमें लोकलाइज्ड ओवर एक्सपोज्ड एरिया ड्यू टू फोटोसेंसिटिविटी है, ठीक है। और इसमें लीजन, स्किन लीजन्स क्यों हो रही हैं? बेसिकली लोकलाइज्ड ओवर एक्सपोज्ड एरिया ड्यू टू फोटोसेंसिटिविटी, पिगमेंटेशन हो रही है, और लाइक देन अगेन इसके स्किन में डर्माटाइटिस है, पिगमेंटेशन है, स्किन लीजन्स है, और बेसिकली लोकलाइज्ड ओवर एक्सपोज्ड एरिया ड्यू टू फोटोसेंसिटिविटी है, और पिगमेंटेशन सुप्रा ऑर्बिटल रीजन्स में हो रहे हैं, स्किन रैशेस हैं और मोस्ट कॉमन एरिया अराउंड नेक। इन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इसमें डायरिया है, एनोरेक्सिया है, और पेन है, इन्फ्लेमेशन है, एंड स्मूथ एट्रोफी ऑफ द म्यूकोसा ऑफ टंग, और इसमें टंग में फिशर्स होंगे, माउथ में, और लाइक इन्फेक्शन होगी, ग्लोसाइटिस होगा, पेन होगी। इसमें यूजली अगर डायरिया की बात करें, डायरिया में 2 टाइप्स होती हैं, एक इन केस अगर वाटरी डायरिया और ब्लडी है, और बेसिकली ये मेन फीचर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऑब्वियसली डायरिया, उसके साथ एनोरेक्सिया है, पेन है माउथ में, और इन्फ्लेमेशन है, टंग की इन्फ्लेमेशन है, ग्लोसाइटिस है,
और ये बेसिकली मेन अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम. Nervous system, if we compare nervous system with digestive and skin, this system is involved quite late. In nervous system में माइग्रेन इफेक्ट होगी स्पेसिफिकली रीजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है और इसमें देन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं लाइक इसमें नर्वसनेस होगी, कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, इंसोमिया है और डिलीजन्स है, हेलुसिनेशन है, सीजर्स हैं, डिमेंशिया है और ये सिम्टम्स बेसिकली में भी ड्यू टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन है और बेसिकली ट्रिप्टोफिन इन केस अगर लो प्रोटीन का इंटेक है और ट्रिप्टोफिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है और बेसिकली इन केस अगर इंटेक कम है ट्रिप्टोफिन लो उसकी बॉडी में देन डिक्रीज कर देगा फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन और बेसिकली सेरोटोनिन का लिंक मेंटल डिसऑर्डर से लाइक अगर इन केस इंसोमिया है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, डिलीजन्स है और हेलुसिनेशन. Dermatitis, diarrhea, and dementia. These are the three prominent feature of प्लेग्रा के और इन केस अगर स्वीयर प्लेग्रा की डेफिशिएंसी है और नाइसिन की डेफिशिएंसी और स्वीयर प्लेग्रा देन दैट एक वन ऑफ द मेन कॉजेज है इन केस अगर प्लेग्रा नाइसिन की डेफिशिएंसी है और इन प्लेग्रा में factor affecting its requirement in case consuming high quality protein है लाइक इनटेक हाई क्वालिटी प्रोटीन का है उसकी वजह से एसेंशियल अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफिन है वो बेसिकली विच कैन फॉर्म नाइसिन बट इन केस ग्रेन्स की प्रोडक्ट ज्यादा कंजम्पशन या इंटेक ज्यादा है और इन केस अगर वेजिटेरियन है उसमें बेसिकली एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफिन बेसिकली अगर डाइट से मिसिंग है ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी और इस फैक्टर में बेसिकली इसकी इंक्रीज कर देगा इसके हम डिफरेंट इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं फुलफिल करने के लिए डेफिशिएंसी. Niacin, basically niacin as a drug, niacin is used इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स इनके लेवल इन केस बॉडी में एलिवेटेड है देन हम नाइसिन को एज ए ड्रग यूज करते हैं और इसके रिजल्ट में सीरम LDL and VLDL इनके लेवल्स लो एंड एलिवेशन ऑफ HDL लेके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इनके लेवल्स लो एंड एलिवेशन किसकी हो रही है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन केस हाई डोजेज और ओवर डोजेज है नाइसिन की देन इसमें लेवल ऑफ लिवर एंजाइम इन सीरम इंक्रीज और बेसिकली इसकी गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी और लाइक इसके साइड इफेक्ट्स में gastric irritation is also produced and level of liver enzyme in serum is increased और बेसिकली वो severe liver damage और देन इसमें हाइपरग्लाइसीमिया एंड अर्थराइटिस लाइक ओवरडोज या हाई डोजेज है नाइसिन की जब हम इसे एज ए ड्रग और मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसमें इरिटेशन होगी और गैस्ट्रिक इरिटेशन है हाइपरग्लाइसीमिया है अर्थराइटिस है and increase liver enzymes. From tryptophan to niacin basically in many steps हैं और इसमें liver GI tract tissues of the body और basically in deficiency of the riboflavin and pyridoxine and in case अगर use है tuberculosis drugs का then इसमें decrease changes में like इसमें इनकी conversion और change from tryptophan to niacin ये basically decrease हो जाएगी और intestinal bacteria also synthesize सोर्सेस में लीवर और बेसिकली मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लीवर है किडनी और द रिचेस्ट सोर्सेज है देन मीट है फिश है एग है मिल्क है और बेसिकली ये बॉडी में ड्राइव कर रहा है फ्रॉम ट्रिप्टोफिन में एसेंशियल अमाइनो एसिड है और 60 mg ट्रिप्टोफिन के वो 1 mg ड्राइव या प्रोड्यूस कर रहे हैं नाइसिन के और चेंज ट्रिप्टोफिन से नाइसिन में मैनी स्टेप्स हैं इसमें लिवर है जीआई ट्रैक है और अदर टिश्यूज इसमें लाइक इसमें चेंज में यूज हो रहे हैं
इन केस अगर पैराडॉक्सिन की और ऐसी ड्रग्स यूज हो रही हैं जिसकी वजह से डिक्रीज होगा इनटेक ट्रिप्टोफेन टू नाइसिन का, और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आल्सो सिंथेसाइज। और ट्रीटमेंट इसमें हाइपरलिपिडीमिया है और बेसिकली इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को इन एडिपोज टिश्यू, और मेन लाइक फैक्टर प्रोड्यूसर है किसका, फ्री फैटी एसिड्स का, और नाइसिन कॉजेज डिक्रीजेस है इसमें लिवर ट्राइग्लिसरॉल्स के सिंथेसिस को डिक्रीज कर रहा होता है, और इसमें निकोटिनिक एसिड एंड निकोटीन अमाइड, इन निकोटीन अमाइड में बेसिकली अमाइड ग्रुप है, और बेसिकली इन निकोटिनिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है, और बेसिकली इन बॉडी में निकोटीन अमाइड से निकोटिनिक एसिड में चेंज होगा, और इन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इक्वलेंट है, और बेसिकली इन बॉडी में चेंज होगा जस्ट अमाइड से एसिड ग्रुप में। NAD+ और NAD+ बेसिक NADP+ बेसिकली एक्ट एज ए कोएंजाइम, इसमें अल्कोहल, लैक्टेट, मेलेट और पायरोवेट इन सब में लाइक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज में, और बेसिकली एक्ट एज ए कोएंजाइम लाइक इन केस अगर NADP बेसिकली इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज में और ग्लूकाथायोन रिडक्टेज में, और NAD+ बहुत एक्ट कर रहे हैं एज ए कोएंजाइम किसमें, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज में। Since liver and kidney are the richest sources, meat, fish, egg, milk, whole wheat, unpolished rice. Leafy vegetables are also good sources in body. Basically, it derived from tryptophan, or 60 mg of tryptophan supply 1 mg of niacin. बीटा एलानिन एंड पेंटोइक एसिड, और ये बेसिकली B5 या पेंटोथिनिक एसिड बना रहे हैं, और इसकी एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम ए है। इन टिश्यू दिस विटामिन इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट entirely in form of coenzyme A and bound to protein which is avoenzyme. Structure of coenzyme B5 is joined in one hand to adenosine 3-phosphate by pyrophosphate bridge, like a B5 एक साइड पे ज्वाइन होगा एडिनोसिन 3 फॉस्फेट से बाय पायरोफॉस्फेट ब्रिज के थ्रू। अदर हैंड में अगर इसकी 2 साइड्स हैं, वन साइड में उसने अटैच हो गया थ्रू पायरोफॉस्फेट ब्रिज के थ्रू, अदर साइड में पेप्टाइड लिंकेज है जिसके थ्रू ये अटैच होगा। वन साइड में ये अटैच होगा एडिनोसिन 3 फॉस्फेट बाय पायरोफॉस्फेट ब्रिज, अदर साइड लाइक वन साइड में अटैच हो गया, अदर साइड रिमेनिंग है उसमें पेप्टाइड लिंकेज होगी, उसमें बीटा मैकेप्टो एथोनॉल इमाइन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अमाइनो एसिड सिस्टीन। सिस्टीन अमाइनो एसिड से ऑब्टेन हो रहा है बीटा मैकेप्टो एथोनॉल अमाइन। ये बेसिकली इसकी पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू इसकी B5 की अदर साइड पे होगा। अगेन इसमें वन साइड में इसके एडिनोसिन 3 फॉस्फेट बाय पायरोफॉस्फेट ब्रिज, अदर साइड पे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बीटा मैकेप्टो एथोनॉल अमाइन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अमाइनो एसिड सिस्टीन। एंड बेसिकली थायल ग्रुप होता है इन केस लाइक जो बीटा मैकेप्टो एथोनॉल अमाइन है इसमें थायल ग्रुप होता है, और वो रिएक्टिव साइट है वो एंजाइम मॉलिक्यूल की लाइक एक्टिव साइट, और ये है, और
इसमें बेसिकली इसके B5 के कंपोनेंट है को एंजाइम का, और मेन फंक्शन इसका है ट्रांसफर करना है असाइल ग्रुप को, और को एंजाइम थायल ग्रुप कंटेन करता है, और डेट कैरीज असाइल कंपाउंड्स एज ए एक्टिवेटेड थायो ईस्टर्स है। अब इसमें एग्जांपल्स में लाइक सक्सनाइल कोए है, फैटी इसाइल कोए है, एसिटाइल कोए है। B5 कंपोनेंट है कोए का, और मेन फंक्शन है ट्रांसफर करना है असाइल ग्रुप। It is a viscose yellow oil stable to moist heat but destroyed by dry heat, or commercially available as a sodium and calcium salt. Deficiency or clinical deficiency of this vitamin is not seen, or its deficiency is not well characterized. बेसिकली इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बेस में लाइक उनकी डेफिशिएंसी की स्टेट के सिम्टम्स क्या हैं। इसमें इरिटेबिलिटी है, स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टरबेंस है, और एक्सरसाइज इन केस माइल्ड एक्सरसाइज में पेन है, और जीआई डिस्टरबेंस है। और फूड सोर्सेस में लेके ये इसमें लिवर, किडनी, एग्स, मिल्क, पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, और ये बेसिकली इसके मेन सोर्सेज हैं। और इसमें एग्स, लिवर, और दीज आर द मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट इसके सोर्सेज हैं।